Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 24, part 3 of English Communication. Topics to be covered in this session are what actually happens in a GD and meetings. We've already discussed a lot about group discussions in part 2 and part 1 of this session. Now, you know that group discussion, it's a participation in a systematic way on a particular topic with one common objective of finding a solution to that problem. But you must remember a few things I told you, that it's not a wrestling match to score points. So you need to attack on the points, you need to attack on the subject, not people. We have already discussed what all skills are being assessed in a GD and how can you make your GD better. I've already told you a few important points that should be kept in mind while doing GD. Practice makes man perfect. So practice makes man perfect is a very common phrase you heard every day. Similar for GD also, आप पहले कुछ मॉक जीडीज़ को पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहाँ पर आप इस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड वहाँ आप अपने आइडियाज़ जो हैं, स्ट्रेंथ हैं, आपके जो एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके अंदर सही तरीके हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए और क्या एरियाज़ हैं जो इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं एंड यू कैन वर्क ऑन देम कॉन्शियसली, और उन पर आप कॉन्शियसली वर्क कर सकते हैं जो आपको लगता है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. Outgrowing old habits like indulging in a small talk with a group of friends and instead focus on discussing a topic of current relevance. और इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ. आप करंट रेलेवेंस के टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं rather than indulging in small talks. You can, amongst your friend, you can focus on discussing the topics of current relevance. An informal gathering of friends can be converted into GD practice session. तो एक GD practice session आप उसे बना सकते हैं अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी गैदर हुए हैं. Rather than talking on small topics and all, you can go for discussing topics of current relevance, जहाँ पे आप एक छोटा सा GD practice session भी create कर सकते हैं ताकि आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहें. So that you can identify your areas of strength and areas of improvement and you can work on them consciously to make your GDs better. What actually happens in a GD? Actually थोड़ा सा अगर हम जान लें कि GD किस तरीके से इनिशिएट होता है, किस तरीके से इंट्रोड्यूस होता है, and then body of the group discussion, then summarization and conclusion happens. सो पहले आप इनिशिएट करते हैं, सही डायरेक्शन में लीड करते हैं, देन ग्रुप डिस्कशन हैपन्स. एक्चुअली बॉडी is there where you discuss, communicate effectively and behave properly. All the things happen in this part, and then conclusion, that is arriving at a common conclusion, finding the solution to a problem with a common objective. I told you we go for GD, so वहाँ पर आप लास्ट में समराइज कर सकते हैं, कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके जीडी में क्या बात हुई और किस कंक्लूजन पे आप अराइव होते हैं, कहाँ पर आपका सल्यूशन निकलता है. दैट इज़ द एंड ऑफ जीडी. इनिशिएशन की अगर बात करें, इनिशिएशन जीडी इज़ हाई प्रॉफिट हाई लॉस स्ट्रैटेजी. यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये. इनिशिएशन अगर आप करते हैं या तो वहाँ आप हाई प्रॉफिट पे रहते हैं या हाई लॉस स्ट्रैटेजी पे रहते हैं. Either you will go for high profit. आप बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर लेते हैं अपनी बातों को और हाईली मैच्योरली, बहुत ही प्रेजेंटेबल मैनर में आप अपने व्यू पॉइंट्स को रख देते हैं, तो दैट विल बी अ हाईली प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर यू. वहीं अगर आप गलत लीड कर लेते हैं, यू जस्ट डायरेक्शन जो है वो आप मिसलीड कर देते हैं अपने ग्रुप मेंबर्स की भी, तो दैट विल बी अ हाई लॉस स्ट्रैटेजी. तो जीडी को इनिशिएट करना या तो आपके लिए हाईली प्रॉफिटेबल रहेगा या यू विल बी इन हाई लॉस इन दैट केस. इनिशिएट only if you have in depth knowledge about the topic in hand. बट आप तभी इनिशिएट करिए जीडी में, तभी स्टार्ट करिए जब यू हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक एट द एंड. आपके पास उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है, कंटेंट की प्रॉपर नॉलेज है. ओनली इन दोज केसेस यू जस्ट गो फॉर जीडी initiation.
एंड डू नॉट स्टैमर, स्टटर और कोट रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स। स्टैमर मत करिए, डरिए मत, और गलत फैक्ट्स और फिगर्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर आप कोशिश कर रहे हैं इनिशिएट करने की और वहाँ पे आप इस तरीके के गलत पॉइंट्स, रॉन्ग फैक्ट्स, कोट्स दे रहे हैं, फिगर्स दे रहे हैं और स्टैमर कर रहे हैं, तो वो बहुत ही आपके लिए लॉस हो जाएगा। वहीं अगर आप यहाँ से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो इट विल बी अ हाईली प्रेजेंटेबल सिचुएशन, हाईली प्रॉफिटेबल सोल्यूशन। ओनली स्टार्ट ऑन, इन माई व्यू यू कैन ओनली स्टार्ट इफ़ यू हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक। हाउ टू मेक गुड इम्प्रेशंस, जैसा मैंने आपको बताया कि इनिशिएशन में आपको थोड़ा सा समझदारी से बिहेव करना होगा, मैच्योरली बिहेव करना होगा। तो आप कैसे अपना फर्स्ट इम्प्रेशन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, गुड फर्स्ट इम्प्रेशन? यू कैन यूज़ ईदर ऑफ दीज थिंग्स। यू कैन यूज़ कोट्स, डेफिनेशंस, क्वेश्चन, शॉक स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, जर्नल स्टेटमेंट्स, इनमें से कुछ भी आप यूज़ करके, बट इट शुड बी हाईली प्रेजेंटेबल और बहुत ही लॉजिकल मैनर में, मैच्योर मैनर में आपने वो चीज़ों को प्रेजेंट करना है। गलत फिगर्स या गलत फैक्ट्स देने से, गलत कोट्स देने से भी कई बार आपके लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। कोच के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, कोच बहुत ही इफ़ेक्टिव वे रहता है जीडी को इनिशिएट करने का। अगर आप मान लीजिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। अगर आपका जीडी का टॉपिक है शुड द सेंसर बोर्ड बी अबॉलिश, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही फेमस कोट से, हिडन एप्पल्स आर ऑलवेज स्वीट, कि छुपे हुए जो एप्पल्स हैं वो हमेशा बहुत ही मीठे लगते हैं, छुपी हुई चीज़ें जो हैं वो बहुत ही मीठी लगती हैं। तो इस तरीके के कोट से आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए जीडी टॉपिक है कस्टमर इज किंग, you could quote Sam Walmart or Walton's famous saying that there is only one boss, the customer। जैसा कि अगर आपको इस तरीके का कुछ टॉपिक आया है कस्टमर इज किंग, तो वहाँ पर आप किसी की फेमस सेइंग्स डाल सकते हैं, फेमस कोट्स डाल सकते हैं। मे बी यू कैन से देर इज़ ओनली वन बॉस द कस्टमर एंड यू कैन फायर एवरीबडी इन द कंपनी। उसकी वजह से हर कोई बाहर निकल सकता है, फ्रॉम द चेयरमैन ऑन डाउन, सिंपली बाय स्पेंडिंग हिज मनी समवेयर एल्स। सो इस तरीके के कोट्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर अ गुड प्रेजेंटेशन, फॉर अ गुड स्टार्ट। डेफिनेशन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है स्टार्टिंग अ जीडी बाय डिफाइनिंग द टॉपिक और एन इम्पॉर्टेंट टर्म इन द टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टॉपिक ऑफ द जीडी इज एडवर्टाइजिंग, is a diplomatic way of telling a lie. You can start with the definition of advertising, that it's a what is actually advertising, so that you can discuss the topic further, that how it can be a diplomatic way of telling a lie. Before that, you can start with definition of advertising, that any paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods or services through mass media like newspapers, magazines, televisions और रेडियो बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर्स। तो आप एडवर्टाइजिंग को इस तरीके से इसका डिफ़ाइन करते हुए आप इसे आगे टॉपिक को लीड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका रहता है कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने का। क्वेश्चन, समटाइम क्वेश्चन ऑल्सो, आस्किंग अ क्वेश्चन ऑल्सो इज़ वेरी इम्पैक्टफुल वे ऑफ स्टार्टिंग अ जीडी। It does not signify asking a question to any of the candidates in a GD so as to hamper the flow. It implies asking a question and answering it yourself. इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्लो को हैम्पर करने के लिए आप क्वेश्चन बीच में पूछ लेंगे, बल्कि इफ़ यू आर इम्प्लाइंग आस्किंग अ क्वेश्चन एंड आंसरिंग इट योरसेल्फ, जैसे कि शुड इंडिया गो टू वॉर विद पाकिस्तान, यू कुड स्टार्ट बाय आस्किंग, अगर आपका टॉपिक कुछ ऐसा है कि इंडिया शुड गो फॉर वॉर विद पाकिस्तान, सो you can start by asking a question that what does war bring to the people of a nation? We have had 4 clashes with Pakistan. The pertinent question is what have we achieved? So यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देते हुए उन्हें, क्वेश्चन के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हुए आप उन्हें गाइड कर रहे हैं और अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीका रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आखिर वॉर से किसी को कब फ़ायदा हुआ है, क्या एक वॉर लेकर आती है उस नेशन के लोगों के लिए। और आज तक 4 क्लैशेस हो चुके हैं हमारे पाकिस्तान के साथ।
द पर्टिनेंट क्वेश्चन इज व्हाट हैव यू अचीव, क्या अचीव हो पाया अब तक, कुछ भी नहीं. सो बाय आस्किंग क्वेश्चन यू आर इन्फॉर्मिंग ऑल्सो, you are creating a very good impact on the moderator. Another thing that you can go for initiating a GD is a shock statement. शॉक स्टेटमेंट भी लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका रहता है. इट्स अ बेस्ट वे टू ग्रैब इमीडिएट अटेंशन एंड पुट फॉर्थ योर पॉइंट. कुछ ऐसा शॉकिंग सा आप स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सब आपकी बात सुनकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, आपकी बात सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं. अगर आपका जीडी टॉपिक कुछ ऐसा है, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑन द इंडियन इकॉनमी, कि पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट रहता है इंडियन इकॉनमी का पर, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं. एट द सेंटर ऑफ एन इंडियन कैपिटल स्टैंड्स अ पॉपुलेशन क्लॉक दैट टिक्स अवे रिलेंटलेसली. इट ट्रैक्स 33 बर्ड्स अ मिनट. तो कुछ ऐसी फिगर्स आप दे सकते हैं जो सबको सुनकर हैरानी हो जाए, सब आपकी तरफ बहुत ही अटेंटिव होकर सुनने लगे. एंड यू कैन से कि 2000 एन आवर बर्ड्स होते हैं, हर मिनट में 33 बर्ड्स हो रहे हैं, हर घंटे में 2000 बर्ड्स हो रहे हैं, एंड एवरी डे 48,000 विच कैलकुलेट्स टू अबाउट 12 मिलियन एवरी ईयर. तो हर साल में आप समझ सकते हैं कि 12 मिलियन लोग खड़े हो जाते हैं. दैट इज़ रफली द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अराउंड एक ऑस्ट्रेलिया अपने आप में जो साइज़ रखता है वो हर साल इंडिया में खड़ा हो जाता है. तो इस तरीके के कुछ स्पेशल शॉकिंग फैक्ट्स फिगर्स आप दे सकते हैं, ओनली इफ़ यू नो देम प्रॉपरली. गलत फैक्ट्स फिगर्स देना वो बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करेगा. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि रॉन्ग फैक्ट्स फिगर्स और रॉन्ग स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो आपके लिए एक बहुत ही हाईली लॉस सिचुएशन हो जाएगी. तो इसीलिए अगर आप नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ओनली टू एग्जैजरेट या लैंग्वेज का यूज़, कम्युनिकेशन का यूज़ आप करना चाहते हैं, तो वो एक आपके लिए हाईली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाएगी. रादर देन इनिशिएटिंग यू कैन यूज़ योर माइंड एंड यूज़ योर इनपुट्स इन बिटवीन, रादर देन मिसगाइडिंग, मिसलीडिंग द ग्रुप. So as a current political slogan puts it, nothing impossible when 1 billion Indians work together. So इस तरीके की आप कुछ स्लोगन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विद अ शॉकिंग स्टेटमेंट. ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका रहेगा, बहुत बेस्ट वे रहेगा टू ग्रैब अटेंशन एंड पुटिंग फॉर्थ योर पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ कुछ और फैक्ट्स फिगर्स, वहाँ पे आपने कुछ शॉकिंग सा उनको न्यूज़ दिया, यहाँ पे आप प्रॉपरली कुछ फैक्ट्स जो आपको मालूम है उनके बारे में यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू डिसाइड टू इनिशिएट योर जीडी विद फैक्ट्स फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स, बट ध्यान रखिए कि आप उन्हें करेक्टली कोड कर रहे हैं, एक्यूरेटली कोड कर रहे हैं. अप्रॉक्सीमेशन इज़ अलाउड इन मैक्रो लेवल फिगर्स. मैक्रो लेवल फिगर्स में ही अप्रॉक्सीमेशन अलाउड है. माइक्रो लेवल की जो फिगर्स हैं उनको बिल्कुल ही करेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टेज इन रूरल एरियाज. मैक्रो फिगर्स है, ये बहुत लॉन्ग या बहुत बड़ी फिगर्स हैं, मैक्रो फिगर्स हैं, तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन आप कर सकते हैं. अगर 69 है या 69 पॉइंट समथिंग है, इस तरीके से आप उसे 70% ऑन द होल बोल सकते हैं. बट यू कैनॉट से 30 स्टेट्स ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ 28 स्टेट्स. तो वहाँ पर कोई भी अप्रॉक्सीमेशंस नहीं चलेंगे आपके, अगर आप बोल देते हैं कि 30 स्टेट्स हैं. यहाँ पे माइक्रो फिगर्स हैं, छोटी फिगर्स हैं जो आपकी बिल्कुल करेक्ट ही होनी चाहिए. तो मैक्रो फिगर्स को तो आप कर सकते हैं, थोड़ा सा होल राउंड ऑफ या अप्रॉक्सीमेशन दे सकते हैं, बट नॉट इन माइक्रो फिगर्स. नो अप्रॉक्सीमेशन इज़ अलाउड इन दोज केसेस. स्टेटिंग रॉन्ग फैक्ट्स वर्क्स टू योर डिसएडवांटेज. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप गलत फैक्ट्स बताते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही डिसएडवांटेज सिचुएशन हो जाएगी और यू विल बी इन हाई लॉस. शॉर्ट स्टोरी भी एक बहुत अच्छा तरीका रहता है कुछ स्टार्ट करने का, जिसमें आप एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग इस तरीके का अगर आपका टॉपिक है तो वहाँ पे आप कोई छोटी सी स्टोरी सुनाकर आप स्टार्ट कर सकते हैं. इस तरीके की, अ चाइल्ड वंस आस्क्ड द बलून वेंडर who was selling helium gas filled balloons whether a blue colored balloon will go as high in the sky as green colored balloon. The balloon vendor told the child it is not the color of the balloon but what is inside it that makes it go high. So इस तरीके से एटीट्यूड को आप दर्शा सकते हैं कि एटीट्यूड क्या इंपॉर्टेंस रखता है. इट इज़ नॉट द आउटर बॉडी, आउटर फिजिकल अपीयरेंस, बट वॉट यू आर इनसाइड इट मेक्स यू गो हाई. सो यहाँ पर जिस तरीके से उसने एग्जाम्पल देते हुए चाइल्ड का और गैस बलून्स का उन्होंने बताया,
कि कलर जो है बाहर से फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करती है. बलून वेंडर ने बताया कि इट्स द कलर ऑफ द बलून विच इज़, इट इज़ नॉट मैटर दैट व्हाट इज़ द कलर ऑफ द बलून, बल्कि जो उसके अंदर है हीलियम गैस, जो उसका एटीट्यूड है एक इंसान का, वही उसे हाई लेकर जाता है. तो इस तरीके की आप शॉर्ट स्टोरी से भी शुरू कर सकते हैं अपने जीडी को. कुछ जनरल स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं टू पुट द जीडी इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव. अपने जीडी को प्रॉपर पर्सपेक्टिव में लाने के लिए आप वहाँ पर कुछ जनरल स्टेटमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द टॉपिक इज़ शुड सोनिया गांधी बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो अगर टॉपिक इस तरीके से है कि सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सो यू कुड स्टार्ट बाय सेइंग बिफोर जंपिंग टू कंक्लूजन्स लाइक येस सोनिया गांधी शुड बी और नो सोनिया गांधी शुड नॉट बी. आप एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि बिफोर, इससे पहले कि हम कुछ कंक्लूजन्स पर आएँ कि सोनिया गांधी को एक हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें कुछ क्वालिटीज़ जो हैं एक गुड प्राइम मिनिस्टर में जो होनी चाहिए वो उनके अंदर हैं या नहीं हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द क्वालिटीज़ वन नीड्स टू बी अ गुड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एक गुड प्राइम मिनिस्टर होने के लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, देन वी कैन कंपेयर दीज क्वालिटीज़ विद दोज दैट मिसेस गांधी पोजेसेस. उनको आप मिसेस गांधी की क्वालिटीज़ के साथ पोजेस जो वो करती हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं. देन यू कैन अराइव एट द कंक्लूजन इन अ मोर ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव मैनर. दिस विल हेल्प अस रीचिंग द कंक्लूजन इन द मोर ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव मैनर. सो इस तरीके का जनरल स्टेटमेंट भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. अगर आप इस तरीके के जनरल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी हेल्पफुल सिचुएशन हो जाती है और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं आपके लिए. समराइजेशन टेक्निक की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपको समराइजेशन में मोस्ट जीडीज डू नॉट रियली हैव कंक्लूजन्स. बहुत सारे जीडीज में तो कंक्लूजन निकल ही नहीं पाता है क्योंकि सब लोग एक कंसेंसस पे नहीं आ पाते हैं, सब लोग अपने ही पॉइंट्स बोलते रहते हैं. लेकिन एक जीडी वही एक सक्सेसफुल जीडी कहलाता है जहाँ पर आप सही तरीके से बाद में से समराइज करते हैं. कीपिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड, यू नीड टू समराइज अ डिस्कशन. नए पॉइंट्स को बाद में समराइजेशन में कुछ भी रेज ना करें, पहले ही जो बॉडी जो फॉलो हो रही है जो जीडी की, तभी आप पॉइंट्स अपने दे सकते हैं. अवॉइड स्टेटिंग ओनली योर व्यू पॉइंट. सिर्फ अपने ही व्यू पॉइंट को स्टेट मत करते रहिए. अवॉइड ड्वेलिंग ओनली ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द जीडी. एक ही एस्पेक्ट पर मत रहिए. डू नॉट कीप इट ब्रीफ एंड कंसाइज. इट मस्ट इनकॉर्पोरेट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट केम आउट ड्यूरिंग द जीडी. जो भी जीडी में इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हुई, वो सब आपकी समराइजेशन में होनी चाहिए. इट मस्ट इनकॉर्पोरेट ऑल दोज पॉइंट्स. इफ द एग्जामिनर आस्क्स यू टू समराइज अ जीडी, इट मीन्स द जीडी हैज़ कम टू एन एंड. इसका मतलब जीडी ख़त्म हो चुका है. और अगर आप सब कुछ समराइज कर चुके हैं और एग्जामिनर ने आपको बोला है कि समराइज कर दीजिए, दैट मीन्स इट रीचेज एंड. डू नॉट ऐड एनीथिंग वंस द जीडी हैज़ बीन समराइज. कुछ भी नया पॉइंट्स वहाँ पर रेज मत करिए और सिर्फ अपने ही व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इसे समराइज मत करिए. सबकी इंपॉर्टेंट बातों को आपने इसमें समराइज करना है. एंड डू नॉट ऐड एनीथिंग न्यू. डू नॉट ऐड एनीथिंग वंस द जीडी हैज़ बीन समराइज्ड. Not the end but a new beginning. So be desperate in whatever you want to do in life. अगर आप desperate नहीं हैं उसे पाने के लिए, वो इच्छा नहीं है आपके अंदर, तो आप वो कभी भी नहीं ले पाएंगे. Act according to the situation, whether it is being polite, assertive or aggressive. जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना चाहिए. अगर पोलाइटनेस की ज़रूरत है, असर्टिवनेस की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, या कई बार एग्रेसिवनेस की भी ज़रूरत पड़ती है, तो यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. और न्यूट्रल रहिए, अदरवाइज इट विल बैकफायर यू. और नेचुरल रहिए, अदरवाइज कई बार आप अपने आप को इतना ज़्यादा स्मार्ट समझ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको बैकफायर कर देते हैं. एंड नॉलेज इज़ अ की एंड सो इज़ फोकस. नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट की है आपके सक्सेस की, और फोकस करना बहुत ज़रूरी है. एंड इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट, स्टार्ट प्रैक्टिस नाउ. इंट्रोवर्ट बनने से आप कभी भी आगे नहीं बन पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए. 3 P's का ध्यान रखिए: पेशेंस, पार्टिसिपेशन एंड प्रोजेक्शन, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं एक जीडी में या आपके करियर में.
अगर हम डिस्कशंस की, ग्रुप डिस्कशंस की कुछ टॉपिक्स की बात करें तो वहाँ पर आपको कई तरीके के टॉपिक आ सकते हैं। टॉपिक बेस्ड जीडी में आपको दो तरीके के जीडीज़ हो सकते हैं, एक टॉपिक बेस्ड, एक केस बेस्ड जीडीज़। टॉपिक बेस्ड जीडीज़ में आपको अलग अलग टॉपिक्स आ सकते हैं, कुछ भी नॉलेज बेस्ड, पेट्रोलियम के प्राइजेस को लेकर, और यूएसए इज़ मोर इंटरेस्टेड इन द पेट्रोलियम ऑफ द मिडल ईस्ट रादर देन इन रियल पीस देयर। कुछ भी नॉलेजेबल बेस आपको टॉपिक्स आ सकते हैं। और इकोनॉमिक रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज के ऊपर आ सकते हैं, आपके प्लान आउटले आप बता सकते हैं, या कुछ भी रिक्वायर कंटेंट नॉलेज, या बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आइटम्स, स्टॉक इंडाइसिस, बजट, ट्रेड, कुछ भी इकोनॉमी के ऊपर आ सकते हैं। सोशल टॉपिक्स में अगर देखें तो रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ मासेस, या व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड प्रोस्टिट्यूशन, इस तरीके की चीज़ें आप सोशल टॉपिक्स में आ सकती हैं। पॉलिटिकल टॉपिक्स में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल, व्हाट इफ द कम्युनिस्ट केम टू पावर, पॉलिटिकल टॉपिक्स को हम ध्यान में रखते हैं। स्पोर्ट्स में शुड कंपनीज अनाउंस हॉलीडेज ड्यूरिंग इंटरनेशनल गेम्स, या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट डेज आर ओवर, इस तरीके के स्पोर्ट्स के या फिल्म्स के भी टॉपिक्स आपको आ सकते हैं। नंबर ऑफ फिल्म्स आर नाउ बीइंग यूज्ड एज केस स्टडीज़ इन बिजनेस स्कूल्स ऑल्सो। आईटी बेस्ड भी आपको आ सकते हैं, आईटी से रिलेटेड, वहाँ प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, तो आपको थोड़ी सी जनरल अवेयरनेस, ई गवर्नेंस और नेटवर्किंग पे भी होने चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी आ सकते हैं आपको, जहाँ पे आपको कुछ कॉमन सेंस या कंटेंट नॉलेज से ज़्यादा आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, या ब्लैक इज़ ब्लैक एंड वाइट इज़ वाइट, इस तरीके की चीज़ें। दे लेंड देमसेल्फ टू वेरीड एंड वाइड स्प्रेड डिस्कशंस। ये आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ उनको बता सकते हैं, इलस्ट्रेशंस के साथ। केस बेस्ड जीडी में आपको कोई केस दिया जाता है, दिस टाइप ऑफ जीडी इज़ मोर स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्कशन इज़ ऑलमोस्ट प्री डिटर्मिन्ड बाय द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम. So these GDs essentially move towards the solution. They require less regulation of the discussion by the moderator, since there is less scope for diverting from the deviating from the topic compared to the topic based GDs. मीटिंग्स भी इसी का ही एक फॉर्म है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग फॉर्मल सेटिंग में आते हैं टू डिस्कस अ प्री डिटर्मिन टॉपिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्कशंस होते ही इसलिए हैं ताकि बाद में जब हम करियर्स के लिए, जॉब्स के लिए जाएं, तो वहाँ पे जब मीटिंग के सेटअप हों तो हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। इट कुड बी फेस टू फेस और इन डिफरेंट लोकेशंस विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ्रेंस कॉल्स और ई मीटिंग्स। स्टाइल ऑफ मीटिंग में अलग अलग तरह की मीटिंग्स हो सकती हैं। फॉर्मल में अगर हम बात करें तो एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स आर डॉक्यूमेंटेड, और इसे जो है मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए चेयरपर्सन आएंगे, सेक्रेटरी, नोटिस पीरियड, मतलब हर चीज़ प्रॉपर फॉर्मल तरीके से यहाँ पर अरेंज होगी। स्टैंडिंग ऑर्डर्स द्वारा गवर्न भी होगी, रूल्स द्वारा चलेगी भी, और एजेंडा भी होगा, नोटिस में भी होगा। तो हर चीज़ फॉर्मल तरीके से यहाँ पर कैरी आउट होगी। वहीं सेमी फॉर्मल में थोड़ा सा यहाँ इतना फॉर्मेलिटी नहीं होती है, और टाइम कंस्ट्रेंट जब होता है तो हम इस तरीके की मीटिंग्स रख लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए या लोकल इश्यूज़ के लिए। ये यूजुअली लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर टाइम में ही ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट होती है, जहाँ पर थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट होने की वजह से या एकदम से अपने एम्प्लॉयज़ का अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, लोकल इश्यूज़ को डिस्कस करना है, वहाँ पर हम इस तरीके की सेमी फॉर्मल मीटिंग कंडक्ट कर लेते हैं। सो now some do it yourself question for you: how to initiate group discussions. ग्रुप डिस्कशंस को कैसे इनिशिएट करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी, कोट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, शॉकिंग स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस या जनरल स्टेटमेंट्स। इस तरीके का मैंने आपको यूज़ करके बताया कि किस तरीके से आप ग्रुप डिस्कशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड वाई जीडी इज़ इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग सिलेक्टिंग अ पर्सन, क्योंकि जीडी से ही आप बहुत सारी चीज़ें असेस कर सकते हैं एक पर्सन में, जो एक नॉर्मली आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वाइल सिलेक्टिंग अ पर्सन आप उसके सभी तरीके के स्किल्स रिगार्डिंग कंटेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, टीम स्किल्स, ग्रुप बिहेवियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सब चीज़ों को आप यहाँ पे असेस कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस आप असेस कर सकते हैं, तो इसीलिए जीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ड्यूरिंग अ सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन। So that is all about GD and meetings. That is all for this session by now. Thank you. Thanks a lot. Happy learning. We learning.